This is Vinod Pandya from SVGMS Sapwara. Welcome to the History Chapter 3, The Making of a Global World. We are in lesson number 3, the 19th century. Friends, we have discussed in this previous chapter about the Indian Rinderpest and indentured labor migration from India. We have seen that the Industrial Revolution, there are two aspects of Industrial Revolution. One is European countries, they expanded their power, they grew, expanded their industries, and they earned a lot of money and become richer and prosperous. The other side of the Industrial Revolution, the second, it is rather darker impact of the Industrial Revolution, was that many other countries, they are colonized, they are under pressure, suppressed, and their resources were exploited. So we have studied about it. What happened? After that, Indian entrepreneurs abroad. We have seen that many Indian industrialists, Indian entrepreneurs, they also moved towards the, other countries. Growing food and other crops required capital. If you want to grow crops, plantations, it required huge capital. Large planters and traders could borrow it from either banks or market. And some of the Indian leading traders, some of the Indian leading entrepreneurs abroad, they were Shikari Puri Shroff and Nattu Kottai Chettayars. They were among the leading Indian traders or entrepreneurs. They financed export agriculture in Central and Southeast Asia. These Indian traders and money lenders, they are also followed European colonizers into Africa. The Hyderabadi Sindhi traders, they ventured beyond European colonizers in Africa by establishing flourishing emporium at the busy ports to the different part of the world and selling cowries to the tourists. They eventually greater in numbers, and this way they earned a lot of money. So this is how Indian entrepreneurs, they found in the international market their place. Now after that, Indian trade and colonization. Historically, fine cotton produced in India were exported to Europe. पहले से ही इंडिया का जो फाइन कॉटन था वो यूरोप की सेवरल कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा था एंड इंडियन फाइन कॉटन वाज इन अ ग्रेट डिमांड ऑल ओवर यूरोप आफ्टर दैट विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर बिगेन टू एक्सपैंड लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर दे आल्सो स्टार्टेड एक्सपैंडिंग देयर कॉटन मैन्युफैक्चरर्स इन ब्रिटेन उन्होंने भी कॉटन मैन्युफैक्चर ब्रिटेन में करना शुरू कर दिया एंड दैट वाज अ कंपटीशन बिटवीन इंडियन फाइन कॉटन क्लोथ्स एंड ब्रिटिश मैन्युफैक्चर कॉटन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट द इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशराइज्ड द गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट कॉटन इंपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज उसके बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट पर उन्होंने प्रेशर किया दबाव डाला कि वो कॉटन इंपोर्ट्स को बंद करें इंडिया से और लोकल इंडस्ट्रीज है वहां ब्रिटेन की उसको प्रोटेक्ट करें टैरिफ वर इम्पोज्ड ऑन द क्लोथ इंपोर्ट इनटू ब्रिटेन इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया से जो ब्रिटेन में जो क्लोथ्स इंपोर्ट किया जाता ब्रिटेन जो इंपोर्ट कर रहा था इंडिया का क्लोथ्स उस पर टैरिफ इम्पोज कर दिया और उससे इंडियन क्लोथ्स था वो ब्रिटेन में महंगा हो गया एक्सपेंसिव हो गया और दैट इज व्हाई इट हैज टू मेड अ स्टिफ कंपटीशन Consequently, the inflow of fine cotton cloths began to decline in England. तो इस तरीके से जो इंडिया का जो फाइन कॉटन क्लोथ्स था जो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जा रहा था वो उसमें डिक्लाइन हुआ वो बहुत कम हो गया फ्रॉम द अर्ली 19th century ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स began to seek overseas markets for that cloth जैसे अर्ली 19th century से ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने कॉटन expand किया उनकी कॉटन इंडस्ट्री they would look for the other markets in India and many other countries Southeast Asian countries in Africa as well उन्होंने दूसरी देशों में अपने मार्केट को
सर्च करना शुरू किया. Excluded from the British markets by tariff barriers, Indian textiles now faced stiff competition in other international market. क्योंकि ब्रिटेन की में जो कॉटन इंपोर्ट किया जा रहा था इंडिया से, उस पर टैरिफ बैरियर लगा गया था. तो इस तरीके से इंडिया का जो कॉटन क्लोथ्स था वो ब्रिटिश मार्केट में काफी एक्सपेंसिव था. वैसा ही दूसरी कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज में, नाउ इंडिया हैड टू फेस अ स्टिफ कंपटीशन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. If you look at the figures of export from India, we've seen a steady decline of the share of cotton textiles from some 30% around 1800 to 15% by 1850. तो इस तरीके से हम देखें कि इंडिया का जो कॉटन एक्सपोर्ट था उसमें दैट इज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन. कॉटन एक्सपोर्ट में लगातार डिक्लाइन हो रहा था. उसके जो फिगर्स है वो ये 1800 में जो टोटल एक्सपोर्ट था उसमें कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट 30% था. वो 1815 तक घट करके 15% रह गया. और बाय द 1870s दिस प्रोपोर्शन हैड ड्रॉप्ड इनटू बिलो 3%. 1870s तक आते आते जो कॉटन एक्सपोर्ट है इंडिया का वो 3% से भी कम हो गया. तो हमने ये देखा कि किस तरीके से कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है वो 1815 से लगा करके 1800 से 1870s के बीच में वो घिर करके केवल 3% रह गया. अब सवाल ये है कि जब कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, देन व्हाट डिड इंडिया एक्सपोर्ट? इंडिया फिर क्या एक्सपोर्ट करने लगा? द फिगर्स अगेन टेल अ ड्रामेटिक स्टोरी. इस फिगर के लिए भी एक बहुत बड़ी स्टोरी आपके सामने. While exports of manufacture declined rapidly, exports of raw material increased equally fast. एक तरफ से कॉटन टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट था वो जिस तरीके से जितना तेजी से गिरा, उतना ही तेजी से रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट बहुत फास्ट ऊपर उठने लगा. तो इंडिया पहले जो फिनिश्ड क्लोथ्स एक्सपोर्ट करता था, अब उसकी जगह पे वी आर कन्फाइंड टू एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल. उसकी जगह पे हम केवल रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने में सीमित रहे. The raw material increased equally fast. Between 1812 and 1871, the share of raw cotton export rose from 5% to 35%. अब देखिए 1812 से 1871 के बीच में जो रॉ कॉटन का जो एक्सपोर्ट था वो 1812 में रॉ कॉटन 5% एक्सपोर्ट हो रहा था. 1871 तक आते आते रॉ कॉटन इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो 35% हो. तो जिस तरीके से फिनिश क्लोथ्स हम उसमें डिक्लाइन हुआ, तो रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करने में हम लोग और ज्यादा उसमें ज्यादा. तो इस तरीके से हमने देखा कि वी आर कन्फाइंड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स. इंडिगो यूज्ड फॉर डाइंग क्लोथ्स वाज अनदर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट फॉर मैनी डिकेड्स. उसके बाद कई डिकेड्स तक इंडिगो भी एक्सपोर्ट होता रहा था इंडिया से, जो कि क्लोथ्स को डाई करने के लिए यूज किया जाता था. एंड वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट ईयर ओपियम शिपमेंट्स आल्सो टू चाइना ग्रू रैपिडली फ्रॉम 1820s. और पिछले साल हमने ये देखा था 1820s के बाद इंडिया से जो ओपियम शिपमेंट्स था वो चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता था. एंड टू बिकम फॉर अ व्हाइल इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट. इस तरीके से कॉटन एक्सपोर्ट में गिरावट के बाद ओपियम एक ऐसा था जिस पर वो सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था इंडिया में. It grew opiums in India and exported it to China, and with the money and earned through this sale, it financed its tea and other imports from China. तो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इंडिया की वो ओपियम सेल करता था चाइना को, और इन रिटर्न दे इंपोर्टेड टी एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम चाइना. इस तरीके से they maintains the trade between India and China. Over the 19th century, British manufacturers flooded the Indian market. Food grains and raw materials exports from India to Britain and the rest of the world increased. 19th century की beginning से Indian market में जो British clothes था, British cotton textiles and British clothes, British made goods, they were flooded. That was a huge glut in the market of the British commodities.
19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही ब्रिटिश फिनिश क्लोथ्स मार्केट में उसकी भरमार होती चली और इस तरीके से ब्रिटेन से जो ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया को, तो ब्रिटेन का एक्सपोर्ट बढ़ गया इंडिया से. Then so we see that, but the value of British exports to India was much higher than the value of British imports from India. अब दो चीजें, ब्रिटिश एक्सपोर्ट जो था वो इंडिया से बढ़ गया, यानी कि ब्रिटेन से जो चीज इंडिया में आती थी उसकी वैल्यू ज्यादा होती थी, और जो कमोडिटीज इंडिया से ब्रिटेन जाती थी उसकी वैल्यू कम आती जाती थी, बिकॉज टैरिफ बैरियर, वहां पर टैरिफ बैरियर लगा था और जो इंपोर्ट्स था, तो इस तरीके से ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस विद इंडिया. तो ब्रिटेन का इंडिया के साथ ट्रेड सरप्लस था, यानी कि ब्रिटेन इंडिया से जो चीज इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा था उसकी वैल्यू इंडिया के मार्केट में ज्यादा होती थी. जो चीज इंडिया से ब्रिटेन सेल की जाती, यानी कि ब्रिटेन इंपोर्ट करता था इंडिया से, उस कमोडिटीज की वैल्यू लो होती थी. सो दिस वे ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस विद इंडिया. तो इस तरीके से ब्रिटेन का इंडिया के साथ ट्रेड सरप्लस था. ब्रिटेन यूज दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डेफिसिट विद अदर कंट्रीज. दो चीजें होती है, ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट. अब इसको यूं देख सकते हैं कि कंट्री की जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस होती है, एक कंट्री दूसरे कंट्रीज को जो चीजें एक्सपोर्ट करती है, तो किसी कंट्री के साथ हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है, तो वी आर इन द ट्रेड सरप्लस. किसी कंट्री के साथ हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो वी आर इन द ट्रेड डेफिसिट. तो ब्रिटेन इंडिया के साथ ट्रेड सरप्लस था, लेकिन ब्रिटेन का अदर कंट्री के साथ जो ट्रेड डेफिसिट था, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका का जो ट्रेड रिलेशन था उसमें ब्रिटेन ट्रेड डेफिसिट में होता था, क्योंकि वहां से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करता था, दूसरी अदर मटेरियल्स इंपोर्ट करता था, और ब्रिटेन का जो एक्सपोर्ट था अमेरिका के साथ वो कम होता था. तो अमेरिका जैसे देशों के साथ उसका जो ट्रेड डेफिसिट था उसका घाटा इंडिया के ट्रेड सरप्लस से पूरा होगा. उसी तरीके से दूसरी चीजें अपन उसमें और ज्यादा देख सकते हैं. दिस इज हाउ अ मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम वर्क. It allows one country's deficit with another country's to be settled by its surplus with a third country. By helping Britain balance its deficits, India played a crucial role in the late 19th century world economy. इस तरीके से हमने देखा कि इंडिया एक तरह से ब्रिटेन के लिए क्रूशियल रोल प्ले कर रहा था. अगर इंडिया के साथ ब्रिटेन का ट्रेड रिलेशन नहीं होता तो संभवतः ब्रिटेन अपने ट्रेड डेफिसिट को पूरा नहीं कर सकता था दूसरे कंट्रीज के साथ. सो इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर British trade manufacturers. Britain's trade surplus in India also helped pay the so-called home charges. ब्रिटेन का जो इंडिया के साथ ट्रेड सरप्लस था, वो होम चार्जेस जो ब्रिटिश कमोडिटीज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटिश इंडिया में जो गवर्नमेंट थी, उन चीजों पर जो होम चार्जेस लगते थे उसको भी पूरा करते थे. एंड इट इज ऑल्सो ब्रिटिश पेइंग द सैलरीज ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया. इंडिया में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थी उनकी सैलरी को पे करना एंड मैनी अदर डेफिसिट्स दे कैन पे. सो दिस वे वी हैव सीन दैट इंडिया हैड अ क्रूशियल रोल इन फॉर ब्रिटेन. दैट इज इन दिस चैप्टर 19th century.